Oh, sir. Aragon district. और जो मिशन शक्ति बेनिफिशरीज आर्टिजन्स ने बनाया सर, ये फूड प्रोसेसिंग है और ये दूसरे आर्टिजन्स ने बनाया। और ये वन स्टॉप सेंटर का है सर, वुमेन वायलेंस के ऊपर काम करते हैं सर यार। दक्षिण सचिव 86 केस है सर, तो उसमें से 57 जो सड़ा हुआ है सर। इसमें 5 फैसिलिटीज मिलता है सर, मेडिकल एड, पुलिस असिस्टेंट, लीगल एड, साइकोसोशल काउंसलिंग, टेम्परेरी शेल्टर्स। डिपार्टमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंटर ओल्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचा लास्ट इसमें हम सर फ्री ऑफ कॉस्ट जो ड्रग एडिक्टेड ट्रीटमेंट बहुत सारी केसेस आए हुए सर। अभी तक हमारे पास 28 है वो केस आए हुए सर जो ड्रग एडिक्टेड है, और जो IPD हमने रिहेबिलिटेशन सर्विस प्रोवाइड किया। काफ़ी OPD में हमारा 78 हमने ये OPD केसेस को फैसिलिटी दिया हुआ है। बाकी अभी हमारे पास 4-5 केसेस एडमिटेड हैं जो रिहेबिलिटेशन सर्विस वहाँ पे दे रहे हैं सर। तो मुझे अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है सर, तो इसका भी गवर्नमेंट की तरफ से Ladakh feel privileged to organize this meaningful celebration dedicated to the valor and sacrifice of Bhagwan Birsa Munda. I, Dr. Poonam, feel deeply honored and privileged to extend my heartfelt welcome to all the dignitaries, esteemed guests, faculty members, students, and participants present with us today. It's my honor to extend a warm and respectful welcome to our chief guest, Honorable Member of Parliament, Ladakh, Shri Mohammad Hanifa Janji. Sir, your presence adds immense value to our event. I extend my heartfelt welcome to our guest of honor, Honorable Executive Councillor, Ladakh Autonomous Hill Development Council, Kargil, Shri Aga Said Mushtaba Ji. May I now respectfully invite District Social Welfare Officer, Dr. Sarwar.
Kurminje to present the national anthem. Guest of honor, Aga Said Mustafa Musawi, Honorable Executive Councillor, Social Welfare, HTC Kargil. Executive Councillors, Shri Tahir Hussain, Director of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs. Shri Imtiaz Kacho, HTC Kargil. Shri Ittiqaq Hussain, Director of Finance, Kargil. Shri Dr. Jafar, Director, Tribal Research Institute, Ladakh, Shri Anayat, DSP Headquarters, Kargil, District Officers, Padma awardees and state awardees, students from the university, college and schools, frontline workers, including Ashas and Anganwadi workers, and other guests present here. On behalf of the Social and Tribal Welfare Department, UT Ladakh, and the Tribal Research Institute Ladakh, I welcome you all to celebrate the Janjatiya Gaurav Divas, which marks the birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda and honors all the tribal freedom fighters. 2025 is the culmination anniversary of the 150th birth anniversary of Dharti Aba. And today, that is 15 November, is observed as Janjatiya Gaurav Divas across the nation. The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, is addressing the nation on this occasion from Narmada, Gujarat at 2 p.m. today. To tell you a brief about Bhagwan Birsa Munda, he was an extraordinary leader whose vision and sacrifice continues to guide our work for tribal prosperity. He was born on 15 November 1875. He emerged as one of the most prominent tribal freedom fighters of India. At a very young age, he recognized the injustices faced by tribal communities under colonial rule,
especially the exploitation of land, forest and identity. To protect the right of Adivasis, he launched the historic Ulgulan movement, awakening the tribal masses with the powerful call Abu Dishum, Abu Raj, which means our land, our people, our rule. So his struggle led to major reforms such as, first of all, protection of tribal land from illegal occupation, and secondly, legal recognition of tribal land rights and restoration of dignity and autonomy of tribal families. Birsa Munda was not only a revolutionary leader, he was also a spiritual reformer, and he worked tirelessly to eliminate social evils, strengthen unity and safeguard tribal cultural heritage. For his people, he became Dharti Aba, which means father of the earth, a symbol of hope, pride and righteousness. Janjatiya Gaurav Divas across the nation, and the period from 1st to 15th November is celebrated as Janjatiya Gaurav Varsh and the Tribal Welfare Department and the Tribal Research Institute Ladakh. We organized a wide range of activities and outreach programs across the Union Territory. The initiatives were aimed at celebrating the rich tribal heritage of Ladakh, promoting awareness about tribal welfare schemes and fostering inclusive community participation. And we conducted a series of programs like we organized painting and quiz competitions in various schools across hair and tradition. Awareness programs were organized at the community level to sensitize the public about government schemes and welfare initiatives designed for the upliftment of tribal communities. We also organized a series of health camps in remote and far-flung villages to provide essential healthcare services and promote health. Lifespan was very short though, because he died at the age of 25 years, but his contribution towards the tribal communities in particular and India's freedom struggle in general had been phenomenal. He was a young freedom fighter and tribal leader who played a key role in resisting British rule in the Chota Nagpur region. Now we need to understand why Birsa Munda is known as Bhagwan, why he was titled as Bhagwan. Birsa Munda's phenomenal contribution, leadership and spiritual influence during the Munda revolution has been phenomenal, and therefore among his tribal communities he is considered as the Bhagwan as well as the Dharti Aba, the father of the earth. This title in itself reflects the impact Birsa Munda had on the tribal communities across the country. Now, presenting the context, I would like to say that among the Munda tribe, there was a system called Kunkati system. Under Kunkati system, the Munda tribal communities had all rights over their land, forest and other resources. But we also know that Britishers had ruled over India for more than 200 years. And during that point of time, Britishers, they exploited all our natural resources, land and other forest lands. And therefore, Britishers actually replaced the Kunkati system with Zamindari system. Zamindari system was very draconian law. It was not accepted by the Bhagwan Birsa Munda and his community. सन 1895 में झारखंड के घने जंगलों और खूंटी के गांव में हलचल थी। हवा में फुसफुसाहटें गूंज रही थी। पेड़ों की सरसराहट जैसे कुछ कह रही हो। इसी भूमि पर जन्मा था वह बालक, जिसने भविष्य में गुलामी की आग भड़का दी, जिसका नाम था बिरसा मुंडा। बालक बिरसा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के छोटे से गांव उलीहातू में हुआ था। महारानी की नजर अब इस भूमि पर थी। खूंटी के जंगल, उपजाऊ घाटियां और खनिज संपदा सब उसकी आंखों के सामने थे। साम्राज्य ने महसूस किया कि इस भूमि पर सिर्फ प्रशासनिक नियंत्रण पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि इसके लिए पूरी ताकत
और सोच समझकर योजना बनाना जरूरी था। Such rugged hills, dense forests and fertile plains, झारखंड की यह भूमि, यह जंगल और पर्वत कितना अद्भुत क्षेत्र है। इसकी प्राकृतिक संपदा और रणनीतिक स्थिति अद्वितीय है। We must ensure that every river, every hill and every village comes under firm administration. Do you understand, Captain Stuart? हर नदी, हर पहाड़ी और हर गांव हमारे प्रशासन के अधीन आए। योर मैजेस्टी, प्रभावी शासन के लिए चौकिया और गश्त नेटवर्क जरूरी है। Then let it be so. Every village, every forest, every path must recognize the authority of the crown. What do you suggest? क्वीन, बच्चों और युवाओं के माध्यम से दीर्घकालीन परिवर्तन लाया जा सकता है। Yes, you're right. The land is vast, rich, and alive with people who value their freedom. We shall govern wisely and firmly. झारखंड, यह भूमि हमारी योजना और शक्ति का परीक्षण करेगी। Orders shall be executed immediately. सभी आदेश तुरंत लागू होंगे। चौकिया, गश्त, आपूर्ति मार्ग और जमीन पंजीकरण। Jharkhand shall witness the firm hand of governance, and the empire's law will extend to every forest, hill and river. झारखंड अब प्रशासन की मजबूत पकड़ देखेगा और साम्राज्य का कानून हर जंगल, पहाड़ी और नदी तक पहुंचेगा। First, start with missionary work. नाम होगा बिरसा डेविड। आज प्रभु के नाम मैं इस वनवासी बालक को नया जीवन दे रहा हूँ। बिरसा डेविड, ये केवल एक नाम नहीं, यह एक नया अध्याय है, आत्मा का पुनर्जन्म। Hello, Father Lutheran. Please come. For what purpose have you all come today? We have brought a message from the Queen. Oh, I hope you bring me some good news. Father Lutheran, दरअसल ये आपके लिए निर्देश है। चाईबासा में धर्म प्रचार की और आवश्यकता है। और अधिक प्रचार? हम कहना क्या चाहते हैं? चाईबासा के लगभग 50% लोग हमारे ईसाई धर्म को मानते हैं। जो भी हो, इस वीरान सी जगह ईसाई धर्म का सच्चा घर बन सकता है। बस आपको उनके साथ नरमी से पेश आना बंद करना होगा। आप लोगों को विवश नहीं कर सकते। फादर लुथरन, हम बचे हुए लोगों को भी धर्म में शामिल करने आए हैं। क्वीन के बनाए गए नए जनरल कानून से हम अधिक लोगों को हमारे धर्म में शामिल कर सकते हैं। जंगल कानूनों का हमारे धर्म से क्या संबंध है? नए कानून के अनुसार जो लोग ईसाई धर्म को अपना लेंगे, उन्हें उनकी जमीन रखने का हक दिया जाएगा। और यदि वे ऐसा नहीं करे तो इस दशा में क्वीन उनकी जमीन की मालिक होंगी, क्योंकि अब से जंगल और खाली जमीन क्वीन की ही संपत्ति मानी गई है। मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ और सरकार की बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा मानना है कि लोगों के दिल प्रेम से ही जीते जा सकते हैं, उनका दमन करके नहीं। फादर लुथरन, आज से ही आपको चाईबासा में मिशन के काम में तेजी लानी होगी। आपको यह सब करने के लिए और अधिक अधिकार और धनराशि दी जा रही है।
अभी से काम में लग जाओ फादर लुथेन। जिस हवा में मैंने सांस ली, उसी धरती पर कोई और हम पर अपना भगवान थोपना चाहता है। वे कहते हैं बिरसा तुम्हें सभ्य बनना होगा, ईश्वर को मानना होगा जैसे हम मानते हैं। पर मैं पूछता हूं, क्या मेरे सिंह गोंगा सूर्यदेव सभ्य नहीं? क्या हमारी नदियां, हमारे पेड़, हमारे पर्वत ईश्वर नहीं? वे हमें कपड़ा देते हैं, वे हमें किताबें देते हैं, पर हमारी आत्मा का क्या? क्या आत्मा को भी खरीदा जा सकता है? हे धरती माँ, क्या इसीलिए तुमने मुझे जन्म दिया कि मैं अपने विश्वास को किसी और के पैरों में डाल दूं? नहीं, मेरा धर्म मेरी मिट्टी से जुड़ा है, मेरे देव मेरे जंगलों में है। मैंने देखा है कैसे हमारे भाइयों को झूठे बातों से बहकाया गया, कैसे हमारी बहनों को सभ्यता के नाम पर अपने जड़ों से काटा गया। पर अब नहीं, अब ये धरती बोलेगी हमारी बोली, हमारे विश्वास में। मैं बिरसा हूं, मां धरती का पुत्र, जिसे झुकना नहीं आता। मैं अपनी जात, अपने धर्म, अपने देव और अपने लोगों के लिए लड़ूंगा, चाहे क्रॉस टूटे या तीर, सत्य की ज्वाला बुझने नहीं दूंगा। इंकलाब! आओ भाइयों और बहनों, आज धरती आबा हमें पुकार रहे हैं। सुनो, सुनो, हवा में उनकी आवाज गूंज रही है। जंगल के पत्ते कह रहे हैं, अब उठो, अब जागो। हमारे पुरखे सिंध बोंगा, धरती आबा, जाहिर आयो, सब देख रहे हैं कि कैसे हमारे जंगल छीने जा रहे हैं। वे पेड़ जो हमारे साथी थे, अब किसी साहूकार के नाम हो गए हैं। क्या ये न्याय है? नहीं बिरसा बाबा, नहीं। तो फिर सुनो, अब समय आ गया है उलगुलान का। भाइयों, याद रखो, हम किसी के गुलाम नहीं, हम धरती आबा की संतान है। हमारे लिए हर पेड़ देवता है, हर नदी माता है। अगर कोई इन्हें छीनना चाहे तो वो हमसे हमारी आत्मा छीनना चाहता है। अब हम सब मिलकर कहे, धरती आबा की जय, धरती आबा की जय, सिंह बोंगा की जय, उलगुलान जिंदाबाद। तू लगान नहीं दे रहा, मैं लगान नहीं दूंगा। ये जमीन मेरे पुरखों की है, धरती आबा ने हमें दी है, किसी रानी ने नहीं। क्या कहा? फिर से कहो तो? तू लगान नहीं देगा? नहीं, नहीं दूंगा। धरती आबा की जय, धरती आबा की जय। हमने सब गांवों को खबर भेज दी है बाबा, लोगों ने लगान देना बंद कर दिया है। बाबा, अगर ये आपको पकड़ ले तो हमारा क्या होगा? मुझे पकड़ सकते हैं, पर गुलाम को नहीं। मैं धरती का बेटा हूँ, अगर मैं गिर भी जाऊं तो हर पेड़, हर बीज से नया बिरसा जन्म लेगा। याद रखो, हमारी लड़ाई तलवार से नहीं, सत्य और धरती से है। जाओ, हर गांव में ये संदेश पहुंचा दो। तो यही है वो धरती का बेटा, तुमने साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। तुम जानते हो ये राजद्रोह है। राजद्रोह नहीं, धरती की रक्षा है। जिस राज ने हमारे खेतों को लूटा, हमारे देवताओं को अपवित्र किया, हमारे बच्चों को गुलाम बनाया, वो राज हमारा नहीं हो सकता। तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा और ऐसे जो धरती का बेटा है उसे कोई हथकड़ी नहीं बांध सकता। तुम्हारे कानून का राज कागजों पर है, हमारे कानून हमारे लहू में है और वो आज झड़ चुका है। अब चारों ओर फौज फैल चुकी है, हर गांव में इनाम की घोषणा हो गई है। जो भी बिरसा मुंडा को पकड़ आएगा उसे 100 रुपये और जमीन मिलेगी।
100 रुपए में कोई अपना धर्म नहीं बेच सकता। हमारी लड़ाई रुपए से बड़ी है, धरती से बड़ी है। मैं बंदी नहीं हूं, मैं धरती की आवाज हूं, उसे तुम कैद नहीं कर सकते। मेरे लोगों की रक्षा करना, उसे हर हाल में नियंत्रण में रखना है। कोई भी भागने की कोशिश न करे। डोंबा, डोंबा, मेरा शरीर मिट्टी में समा जाएगा, लेकिन मेरा संदेश हरियाराज सेतर जना, महारानी राज सुंदू जना, हर जंगल, हर गांव में गूंजेगा। तुम्हें बस ये याद रखना है, धरती हमारी मां है। तुम लोग घबराओ मत, मैं मरकर भी जीवित रहूंगा। हर पेड़ में, हर नदी में, हर आवाज में जो धरती के लिए लड़ेगा। इस तरह रांची की जेल, जहां 3 फरवरी 1900 को अंग्रेज अफसरों ने बिरसा मुंडा को पकड़कर रखा। गांव में एक गुलाम की आग भड़की हुई थी, पर अंग्रेज अफसर उसे रोकने पर तुल गए थे। जंग को बाई जंगल से पकड़कर लाया गया यह आदिवासी नेता, जिन्होंने गांव वालों और जंगल वासियों को संगठित किया, रांची की जेल में बंद कर दिया गया। उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। अंग्रेज रिकॉर्ड के अनुसार 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई। इतिहास कहता है कॉलेरा के कारण मृत्यु, जनश्रुतियों में कहा जाता है जहर के कारण मृत्यु, पर तथ्य यह है बिरसा मुंडा ने अल्पायु में अपने लोगों के लिए उल गुलाम की अग्नि जलाई। उसका साहस, उसका संघर्ष और उसका उल गुलाम अमर है। आओ हम सब अपने भीतर की क्रांति को जगाएं और क्रांतिवीर धरती आबा उल गुलाम को शत शत नमन करें। Theatre for your impactful and beautifully presented sketch. Thank you so much. Abdul Hamid, Tahira Banu, Parveen Akhtar, Zulekha Banu, Professor Shabir Ali, मोहम्मद अब्बास यावर, महबूब अली, मेहरुन्निसा और काजू अहमद खान। थैंक यू सो मच। Again, thank you. As we progress in today's ceremony, it is now time to hear from our distinguished dignitaries whose wisdom and guidance add immense value to this important occasion. With great respect, I take the privilege to invite our guest of honor, Honorable Executive Councillor, Ladakh Autonomous Hill Development Council, Kargil, Shri Aga Saeed Mushtaba ji, to kindly address the gathering. खुशहाली यक्ष इन नममो यंती वक़्त मलिन मा फ़क़त मुख्तसर डिरिंग दी प्रोग्राम पे स्कोर हम लोग मतन गम्मत या जम सुनसेतन मती
Earth Abba Zernan ya Dharti Abba Bhagwan Birsa Munde birth anniversary मौके का दिरिंग ngata ngamadi jam sonset कि जिस शख्स को ngati धरती फरस ngati सरजमीन पे फरस हिंदुस्तानी खासकर ट्राइबल सोसाइटी फरस ट्राइबल कम्युनिटी फरस सांसिक दी भगवान बिरसा मुंडस खुरज अस्नारिनो कोशिश बस खनिन चुक जिस सरजमीन को तहफ़्फ़ुज़ फरस खासकर ट्राइबल कम्युनिटी फरस खुशखुरी जान सबको अस्नारिन आखिरी लम्हात सबको कुर्बान छनंग कोशिश बसे ngati सरजमीन को ngati गरीब गुरबा आवाम को निफरस खुद अंग्रेज सी शितियानुना आजाद बस चानदी मोको जो तो फुंगती हिंदुस्तानी सरजमीन भी फरस गासुचिकिस फरसत ना ngata खुई दिरिंग याद बायको ngatan gangmika zasnarina farz in chiadar bana क्वींस का तो मफरस पिन चुपना दिरिंग ngatan di धरती पे का di सरजमीन पे अनुंगतिस जिंदगी बेनियत आसाइश नंगम्बो आराम नंगम्बो छाना जुन गम्मा ngata खुई बेदौलतिका दरिस ngatiस ngasans नंगम्बो छाना di Ngat mamu mazir bayantan gama dia skut payutpi di Bhagwan Birsa Munda jasnarin daksa ngata Hindustan yanu ga sikim chik खासकर social welfare yanu inna Hindustan ga sikim chik dare jasnarin launching yodna sikim chik jasnarina ngati de yanu yodna khui mintak sika chia sunsin chia darbano khos ट्राइबल कम्युनिटी फरस लस बसेचु दे फर न आता खुई मींपु दुनिया त्यानु दुख दुख शिखुई जस्तारिना जप पी फरस दरे मती जस्तारिना हिंदुस्तान यानु खुई मिंतक सिका जस्तारिना सिकीम जस्तारिना मतपो जस्तारिना टुलिन जुन गमन गति फरस जस्तारिना आ को शायद बात चिगिन छानास yang Muhammad Zarba में यंतम गम्मा शुक्रिया जरूर यंतम दिमो के कसकोते दिया मुझे स्नारिना खास करना दिरिंग सी दी स्नारिना फिल्म चिक्विज स्नारिना मिंजी पान शायद चोसियोत्सु जूस स्नारिना क्विज जिंदगी बारे में लेख से नजर स्नारिना पता में खन नजर स्नारिना आगा छचुक से क्विज स्नारिना प्रैक्टिकली स्नारिना बिरसा मुंडी स्नारिना आ क्वे देचिक नती का फर्ज इनाम दो क्विज दे फर्ज निभाई बसे एग्जीक्यूटिव काउंसिलर आगा सैयद मुस्तफा साहब डायरेक्टर सोशल वेलफेयर कुंजस अम्मो जी डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज श्री ताहिर हुसैन जदवी एडीसी साहब इफ्तिखार हुसैन साहब जॉइंट डायरेक्टर फाइनेंस इनायत साहब डॉक्टर जफर खान डायरेक्टर ट्राइबल रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख यहाँ तशरीफ रखे हुए लेडीज़ एंड जेंटलमैन स्टूडेंट्स आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स सोशल वेलफेयर ऑफिसर और उनकी पूरे टीम मीडिया फ्रेटर्निटी के लोग अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मेरे लिए बेहद फ़ख्र और एजाज़ की बात है कि आज मैं आप सबके दरमियान मौजूद हूँ और हम जनजातीय गौरव वर्ष मना रहे हैं। ये एक कौमी मौका जो भारत की ट्राइबल बरादरियों की बहादुरी, शिनाख्त और
बच्चे को खराज तहसीन पेश करने के लिए बनाया जाता है। इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है क्योंकि हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं यौम पैदाइश मना रहे हैं, जो कबायली खुद मुख्तारी के अलंबरदार, जुल्म के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत और हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद के सच्चे हीरो थे। हिंदुस्तान के वसी जंगलात से लेकर लद्दाख के बुलंद व बाला वादियों तक हमारे मुल्क के कबायली आबादी ने हमेशा कुदरत की हिफाजत की, हमाहंगी को अपनाया और मुल्क की समाजी व सकाफती तरक्की में गैर मामूली किरदार अदा किया। उन्होंने सदियों पुराना इल्म महफूज रखा, सकाफती तसस्सुर को बरकरार रखा और बदलते हुए हालात में बेमिसाल साबित कदमी का मुजाहिरा किया। भगवान बिरसा मुंडा भारत के मुमताज कबाइल मुजाहिद आज़ादी और समाजी मसलह के तौर पर याद किए जाते हैं। 15 नवंबर 1875 को मौजूदा झारखंड के गांव उलियातू में पैदा होने वाले सरसा मुंडा का ताल्लुक मुंडा कबाइल से था, जो अपनी ज़मीन, जंगल और सकाफती रवायत से गहरी वाबस्तगी रखते हैं। जवानी से ही बिरसा ने गैर मामूली कायदाना सलाहियतें, रहानत और रूहानी गहराई का मुजाहिरा किया। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियों की शदीद मुखालिफत की, जो कबायली ज़मीनों पर कब्जा करती, रवायती माइश का निज़ाम बर्बाद करती और भारी टैक्स आयद करती थी। बिरसा मुंडा का यकीन था कि ज़मीन अपने लोगों की है, जिन्होंने नस्ल दर नस्ल इसकी हिफाजत की है। उन्होंने इस्तेहसाल के खिलाफ एक तारीखी तहरीक शुरू की, जिसे उलगान यानी अजीम शान बगावत कहा जाता है। इनका नारा अव्वा रितुम अव्वा राज यानी हमारे ज़मीन हमारा राज, हजारों आदिवासियों को अपने हुकूक, इज्जत और खुद इख्तियारी के लिए बेदार किया। बिरसा मुंडा ने बरतानवी जबर के खिलाफ बेखौफ जद्दोजहद की और ट्राइबल माशरे को तोहम परस्ती, बंदुआ मजदूरी और शराब नवेशी जैसे बुरे रसूम से आज़ाद कराने के लिए अहम समाजी इस्लाहात की। इस तरीके से हमारे उस वक़्त के लीडरशिप, जिसमें अंबेडकर जी जैसे, जवाहरलाल नेहरू जैसे, सरदार पटेल जैसे लोगों ने एक ऐसा देश का नींव रखा, फाउंडेशन रखा, जिस देश में आज हम लोग आजादाना तौर पर जिंदगी गुजार रहे हैं। उसी तरह मैं समझता हूं कि लद्दाख आज एक नए सेटअप में है। लद्दाख का शुरुआत एक नया शुरुआत है और लद्दाख भी एक ट्राइबल एरिया है। और आज मैं समझता हूं इस लद्दाख का जब बुनियाद हम लोग डाल रहा है, तो ये हमारे हाथ में है कि आज लद्दाख का बुनियाद किस तरीके से बुनियाद डाले, जो लद्दाख आगे जाके हमारे नस्ल बर नस्ल जो है एक पूरे देश में इस लद्दाख को एक यूनिक, एक खूबसूरत लद्दाख की ओर हमको ले जाना है और उसका बुनियाद आज डाल रहा है। आज लद्दाख भी कई चीजों से, कई फिक्र से, कई परेशानियों से जूझ रही है, लेकिन आज के इस दिन के मौके पर आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस देश का जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने इस ट्राइबल कबायली लोगों का ख्याल रखते हुए जो बिरसा मुंडा की जो कुर्बानियां हैं, उसका जो विजन है, उसको नजर में रखते हुए
इस दिन को इस तरीके से पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर लद्दाख के लोगों के इश्यूज को, कंसर्न को समझते हुए लद्दाख के जो परेशानियां हैं आगे फ्यूचर में, मुस्तकबिल में इस लद्दाख को किस तरह से अपने जो एक ट्राइबल एरिया है, इसके यूनिकनेस को, इसके कल्चर, इसके आइडेंटिटी, इसके एनवायरनमेंट जो एक पूरे देश में जो एक संघर्ष कर रहा है, उसमें मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि आज के इस दिन पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर इसको समझते हुए, लद्दाख के इस कंसर्न को, इस इश्यूज को समझते हुए इसको जल्द से जल्द जो है वो किसी हल की ओर ले जाएंगे। मैं आज के इस दिन के मौके पर पूरे लद्दाख के अवाम, खुसूसन लद्दाख के नौजवान तबके, उनको ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से अभी डायरेक्टर मैम ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो या ट्राइबल डिपार्टमेंट हो, जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या हमारे यूटी लद्दाख का जो स्कीमें हैं ट्राइबल लोगों के लिए, उनको उनके अवेयरनेस के तौर पर उनको इन चीज़ों से आगाह कर रहा है। मैं समझता हूँ आज के हमारे जो नौजवान तबके हैं इन स्कीमों का भरपूर फायदा ले। हम सबको जो एक हमारी आइडेंटिटी है हमारी लद्दाख की, वो ये है कि पूरे देश में हमें जाना जाता है अमन पसंद लोग, शरीफ लोग और ईमानदार लोगों की शिनाख्त हमारी है। इसको बरकरार रखते हुए इस लद्दाख को अमन और एक देशभक्त, खासकर जो पैट्रियोटिक, एक प्रैक्टिकल देशभक्त जिस तरीके से लद्दाखियों को माना जाता है, इस सारे चीजों को संभालते हुए हमने इस लद्दाख को एक खूबसूरत लद्दाख की ओर हमने ले जाने हैं। We are sincerely grateful for your valuable time and for blessing this program with your presence. Now it's time to honor Ms. Zeboon Nisar, General Secretary Team Stringbo Kargil, for her remarkable efforts and outstanding management of the Janjatiya Gaurav Varsh Pakhwara activities organized across various schools of the district Kargil, funded by Ministry of Tribal Affairs. To do this honor, I request Chief Guest, Honorable Member of Parliament, Shri Mohammad Hanifa Janji, to present the appreciation letter to Ms. Zeboon Nisar. सभी का धन्यवाद। आज इन्होंने इवेंट को इतिहास में अमर बना। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए जनजातीय गौरव दिवस 2025 के पावन अवसर पर। वह दिवस जिसे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर 2021 को प्रारंभ किया। भगवान बिरसा मुंडा एवं सभी जनजातीय नायक उनके संघर्ष और उनके गौरवमय योगदान को नमन करने के लिए यह दिवस संवेदना, संस्कृति और स्वाभिमान का पर्व है। ऐसे यह हम सब के लिए गर्व का क्षण है कि हमारे बीच वह नेतृत्व उपस्थित है जिन्होंने जनजातीय अस्मिता और आत्म गौरव को नई पहचान दी। और अब मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करती हूँ गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शॉल एवं पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। गुजरात प्रदेश प्रमुख से निवेदन है कि वे
धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी 150वीं जन्मदिन के अवसर केडिया महाराज धरती पर जनजातीय गौरव दिवस की राष्ट्रीय कक्षा में उद्योगों में पधारेला 140 करोड़ भारतवासियों लोक नायक आज के गेस्ट ऑफ ऑनर आवास मुस्तफा एग्जीक्यूटिव काउंसलर NHDC काजी, हमारे डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ताहिर जब्दवी साहब, डायरेक्टर फूड सप्लाईज इफ्तिखार साहब, इनायत साहब, डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसरान, काउंसलर्स, हेडमास्टर्स, पद्मा अवार्डीज, नेशनल अवार्डीज, मैं आप सबका बहुत ही मशकूर हूँ कि आप सब इस प्रोग्राम में आए और हमारी हौसला अफजाई की। ये जो प्रोग्राम था ये हम 1 साल से हम इसको बना रहे हैं और इसका जो मेन इंटेंस था वो हमने 15 दिन का बनाया, जिसको हम पकवाड़ा बोलते हैं 115। उसमें हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेयरनेस कैंप्स करने की कोशिश किया, क्योंकि पूरा इंस्ट्रक्शन था पीएमओ की तरफ से और वो जो साइट जो है वो पूरा पीएमओ मॉनिटर कर रहा है। तो उसमें हमें टारगेट ये दिया था कि पूरे इंडिया में 1 लाख से ज़्यादा प्रोग्राम्स होने चाहिए। तो कल तक का रिपोर्ट के हिसाब से जो लद्दाख में हमने तकरीबन 45 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, क्योंकि छोटा यूटी है और पॉपुलेशन बहुत कम है। तो जितना हमसे हो सके हमने प्रोग्राम करने की कोशिश किया अंडर द गाइडेंस ऑफ डायरेक्टर मैम, अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल वाइस चांसलर, हमारे इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन, सबके गाइडेंस में हमने प्रोग्राम करने की कोशिश किया। तो ब्रीफली आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ कुछ प्रोग्राम्स जैसे हमने इशू ये भी था कि प्रोग्राम जो करने थे वो स्कूल्स कॉलेजेस में करने थे, लेकिन वहाँ पे एग्जाम्स हो रहे हैं, तो हेडमास्टर जो है वो बहुत ही रिलेक्टेंट थे प्रोग्राम करने के लिए। तभी बहुत सारे हेडमास्टर्स ने हमने रिक्वेस्ट किया था, तो हमने तकरीबन 15-20 स्कूल्स में हमने ये सारे प्रोग्राम्स किए। पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में हमने अवेयरनेस किया और दूसरा हमने ये कोशिश किया कि कम्युनिटी लेवल पे ये सारे अवेयरनेस फैलाया जाए। तो हमने विलेज लेवल पे क्लीननेस ड्राइव करने शुरू कर दिए। अमची मेडिसिन के लिए हमने नोकरा में अमची मेडिसिन का एक वर्कशॉप किया था, जिसमें बहुत सारा पॉजिटिव रिस्पांस था। पुराना जो हम पप्पू बनाते हैं उसके लिए हमने एक चौथा एरिया में एक वर्कशॉप किया था। बहुत सारे ले डिस्ट्रिक्ट में भी हमने ऑर्गेनाइज किया, करगिल डिस्ट्रिक्ट में भी हमने ऑर्गेनाइज किया। तो जिन जिन लोगों ने इस चीज़ को हमें करने में हमें मदद किया है उन सबका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। और इसी के साथ हमारा जो टीम कंठक है, जिन्होंने जो प्ले का जो स्क्रिप्ट है वो मिनिस्ट्री से ही आया हुआ है, होम मिनिस्ट्री से आया हुआ था, तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से कॉस्ट्यूम न होने के बावजूद भी उन्होंने एक्ट को किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पीएम श्री जो हमारे मिंजी के स्कूल है, उन्होंने नेशनल एंथम के लिए यहाँ पे वो लोग आए, उनकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया जो आगा साहब के क़यादत में आए हैं। और जितने भी डिग्नेटरीज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जो हमारे कहने पे आए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आंगनवाड़ी वर्कर्स, बालवाड़ी वर्कर्स जो हमारे फ्रंट टियर हैं, और सूर्यवेली पब्लिक स्कूल से जो स्टूडेंट्स आए हैं। बेसिकली जो इस प्रोग्राम को 5 हिस्सों में बांटना था, स्कूल के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे, हमारे काउंसलर्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स और हमारे जो ICDS के वर्कर्स, जो CDPOs यहाँ तशरीफ रखे हैं, उनके फ्रंटलाइन वर्कर्स, तो इन सबको इस चीज़ के लिए विटनेस करना था। उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे आए। और मैं यहाँ पे बॉब सज्जाद का बहुत मशहूर हूँ कि अभी हम इस लड़की को फैसिलिटेट भी किया। जितने भी स्कूल्स प्रोग्राम करगिल में हुए पूरा उसी ने बागडोर किया है, वहाँ पे मटेरियल पहुँचाना, वहाँ पे चीज़ों को ले जाना, तो इन सब ने किया है। और मैं इनायत साहब का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने फर्स्ट जो स्पोर्ट्स ट्राइबल स्पोर्ट्स कल कंक्लूड किया, उसमें तकरीबन 200 जो हमारे ट्राइबल स्टूडेंट्स उसने एक्टिव पार्ट लिया है, जिसमें आपका कबड्डी हो, खो खो हो, ये सारी चीज़ें उन्होंने किया है। मैं मीडिया बंधुओं का बहुत मशहूर हूँ कि वो लोग आए, बेचारे बार बार बुलाते रहते हैं, तकलीफ देते रहते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं हमारे वाइस चांसलर का भी बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को प्रोग्राम करने के लिए हमें परमिशन दिया। और लास्ट में मैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने जनरसली हमें फंडिंग किया है इस प्रोग्राम को करने के लिए। और डायरेक्टर मैम के सपोर्ट के बावजूद हम ये प्रोग्राम नहीं कर पाते, वो तो मिनट टू मिनट इन्होंने गाइड किया कि इस तरह से करना है, इनको बुलाना है, ये करना है। और लास्ट में हमारे चीफ गेस्ट साहब का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने एग्री किया इस यहाँ पे आने के लिए। आगा साहब को कल मैंने काफ़ी फोन पे इंसिस्ट किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, इफ्तिखार साहब, इनायत साहब। आज हम सर भगवान बिरसा मुंडा की याद में 150th बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं। ये एक पूरा नेशन वाइड एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें
हम लोग पूरा 1 साल से इनका बरसी मना रहे हैं, एनिवर्सरी मना रहे हैं। इसके बाद जो 1 to 15 का जो उनका प्रोग्राम था उसमें हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, जिसमें अवेयरनेस कैंप्स थे, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स थे, हेल्थ कैंप्स लगाए, और हमने डिफरेंट जितने स्कूल्स है यूटी लद्दाख में, लेह और करगिल दोनों में, उसमें हमें पेंटिंग कंपटीशन, क्विज कंपटीशन और बहुत सारे एक्टिविटीज हमने किए। इसमें से ये लगाना था कि जो भगवान बिरसा मुंडा है उनका बर्थ एनिवर्सरी पे उनका जो फ्रीडम, उनका जो कंट्रीब्यूशन था ट्राइबल राइट्स को लेके, उन सबको जताना था। तो इसीलिए हमने यूटी लद्दाख में भी एक प्रोग्राम किया है और इसमें हमने अराउंड 440 प्रोग्राम्स हमने ऑर्गेनाइज किए, जिसमें डिफरेंट सारे स्कीम्स के बारे में, ट्राइबल इश्यूज के बारे में हमने करने की कोशिश किया है। थैंक्स। और आज के दिन भगवान जो सरसा मुंडा की जो 150वीं एनिवर्सरी के तौर पे मनाया जा रहा है, और ये एक ऐसा शख्सियत था जो जिसने न सिर्फ इस देश को जो है ब्रिटिशर से आज़ाद दिलाने में अपना योगदान दिया, बल्कि पूरे जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके हुकूक के लिए इन्होंने न सिर्फ लड़ा बल्कि अपने जान की आहुति भी दे दी। आज इस मौके पर जो जैसे मैंने अंदर भी कहा, चूँकि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और आज की जो गवर्नमेंट है, इसको इन्होंने पूरा इस दिन को जो है पूरा देश का एक उसकी तरह से मान रहा है, क्योंकि लद्दाख भी पूरा एक 97% जो है यहाँ ट्राइबल लोग बसते हैं, ट्राइबल इलाका है। नया लद्दाख है, पिछले कई सालों से आप सबको पता है एक नए सेटअप में है, लेकिन हमारे मुस्तकबिल को लेके कई परेशानियाँ भी हैं। लद्दाख एक ट्राइबल एरिया है, एक यूनिक एरिया है। यहाँ का कल्चर, यहाँ के आइडेंटिटी, यहाँ के टोपोग्राफी, मौसमी हालात देश भर के बाकी जगहों से बहुत एक अलग यूनिक ये है। और इस लद्दाख को एक खूबसूरत तरीके से आगे किस तरह एक लद्दाख होनी चाहिए, उस पर लद्दाख के अवाम, लद्दाख की लीडरशिप फिक्रमंद है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने भी है। और आज के दिन में मैं समझता हूँ कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से भी गुजारिश भी करता हूँ, होम मिनिस्टर साहब से, कि लद्दाख के जो कंसर्न है, जो इश्यूज है, उनको समझते हुए जल्द से जल्द जो है इन इश्यूज का कोई ना कोई हल निकालें। सर, आपने अभी कहा कि लद्दाख ट्राइबल यूनियन टेरिटरी है, तो ट्राइबल जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल का जो स्पेशल स्कीम्स है सर, उसको यहाँ पे प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कराने के लिए आप क्या इनिशिएटिव दें? देखिए, जिस तरह अंदर भी कहा गया है कि इस जो आज जो दिन मना रहे हैं, इस दिन की उसके मौके पर कई दिनों से सोशल वेलफेयर और ट्राइबल डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है कि लोगों तक जो है जो स्कीमें हैं वो पहुँचाए। लेकिन मैं समझता हूँ जितना स्कीमें खासकर ट्रैवल्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, सही तरीके से आज के डेट में लद्दाख में उस लेवल पे अभी लोगों तक नहीं पहुँचा है। लोगों को भी चाहिए कि बढ़ चढ़ के इन स्कीमों को जाने, देखें और इन स्कीमों को फ़ायदा उठाएं। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे जितने भी स्कीमें हैं उनको लोगों तक पहुँचाएं और इन स्कीमों का जो है फ़ायदा लोगों तक पहुँचाएं। थैंक यू।